Hello, good afternoon. In today's session, we will discuss about the heart attack, its causes, and the preventive measures needed to avoid the heart attack. I am presenting this topic on the occasion of World Heart Day, which is forthcoming on 29th of September. Nowadays, we often come to know that the person died due to heart attack, even at younger age, like 30 to 40 years of age. Incidence of heart attack and number of death due to heart attack is increasing in India. So let's understand what is heart attack and what can be the reason behind it. As you know, heart is the most essential organ in our body. It functions like a pump and allow the circulation of the blood throughout the body. Blood ultimately provides all the nutrients and oxygen supplied to various organs for their normal functioning. As you know, the heart continuously contract and relax to pump the blood into the blood vessels. The pumping of the heart leads to what we can hear as a heartbeat. On an average, in the normal healthy person, the heartbeat ranges between 60 to 100 and average 72 beats per minute. To do such extensive work, heart itself requires blood supply for oxygen, and any interruption of the blood to the blood vessels of the heart, whether it's a partially or fully, causes heart attack. Now, understand the risk factor of the heart attack. The most common risk factor is atherosclerosis. What is atherosclerosis? It means there is an excess of cholesterol and fat deposition in the blood vessels. Risk factors can be modifiable or non-modifiable. Modifiable means which we can change with our lifestyle or with the help of medication. And the non-modifiable, for example, sex or age. For example, we cannot change our age. Age, those who are more than 45 years of age, male or female, more than 55 years of age, they are high risk to have a heart attack. So let's understand which is modifiable risk of atherosclerosis. The number one is cigarette smoking. Those who are smoking, they are a high risk of having heart attack. Hypertension. The person who is having blood pressure of more than 140/90 or on medications. Low HDL cholesterol. हर cholesterol बुरा नहीं होता है, हमारे पास एक अच्छा cholesterol भी होता है. तो where there is a low HDL cholesterol less than 40, it is a high risk for heart attack. Person who are diabetic, they are increased risk of having heart attack. Family history of heart attack. For example, for men, family history of first relative degree. For men, 45 years, or for female, 65 years. Age, as I said already. Lifestyle risk factor, those who are obese. BMI more than 30. Those who are living sedentary lifestyle, exercise नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, और अथेरोजेनिक डाइट, फैटी फूड खाना, मीठा बहुत ज्यादा खाना, तली हुई चीजें खाना, ये सब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट अटैक के? हम सबको पता है कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज चेस्ट पेन, विच is like some प्रेशर आ रहा है हार्ट में, कोई दबा रहा है, या बर्निंग सेंसेशन चेस्ट में होना. ये रेडिएट भी कर सकता है आपके दोनों हाथों में, एक हाथ में, जां में और नेक में. बट कुछ लोगों में ये सिम्टम्स नहीं होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं. चेस्ट पेन हुआ तो आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो चेस्ट पेन ना समझ के लोग, गैस हो रहा है हमको,
गैस जैसी लग रहा है। जो एल्डरली पेशेंट होते हैं और जिनको डायबिटिक होता है उनको मैक्सिमम टाइम चेस्ट में दर्द नहीं होता है। उनको क्या लगेगा कि छाती में हमको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, गैस गैस लग रहा है, जल्दी थक जा रहे हैं, फेंटनेस जैसा हो रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके अपना जांच जरूर कराना चाहिए। तो हमारे जांच में क्या आता है, कभी भी आपको इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो आपको ईसीजी कराना चाहिए। जो हमारे जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं वो ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में हम इनमें कार्डियक एंजाइम्स देखते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होती है। और अगर इनमें समय सब पॉजिटिव आता है, जैसे ईसीजी में चेंजेस हैं, तो हमको एक एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए। कभी कभी शुरुआती समय में हार्ट छाती में दर्द हुआ या इस टाइप के सिम्टम्स आए, ईसीजी नॉर्मल रह सकता है। अगर आपको क्लासिकल सिम्टम्स है या आपके पास रिस्क फैक्टर है तो आपको ईसीजी अगर पहली बार नॉर्मल आया है तो उसको 2-3 बार करा के देखना चाहिए। 2-3 बार मतलब 1-2 घंटे में ही हमको 2-3 बार करा के देखना चाहिए। इको करा लेना चाहिए, कार्डियक एंजाइम कराना चाहिए। आपकी ईसीजी नॉर्मल है और आपका कार्डियक एंजाइम बढ़ा हुआ है, इट मींस आपको हार्ट अटैक है। और फिर एंजियोग्राफी आता है। तो हमको जब हमको ऐसे सब डायग्नोज हो गया कि हार्ट अटैक है तो हमको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। सबसे पहले हमको जैसे चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन को कम करने के लिए हमारे पास कुछ दवाइयां होती हैं। जैसे हम सबलिंगुअल जीभ के नीचे में नाइट्रेट्स रखते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये तो टेम्परेरी रिलीफ हुआ, लेकिन जो कल्प्रिट है, जो हमारी वेसल्स ब्लॉक है, उसको खोलने के लिए हमको थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है या फिर एंजियोप्लास्टी। आपने सुना होगा आजकल एंजियोप्लास्टी करते हैं करके। तो जो आइडियली टाइम होता है डोर टू नीडल टाइम वो, और डोर टू बलून टाइम, ये जो दो चीजें हैं जिसको हमको जानना चाहिए। जो डोर टू नीडल टाइम है मतलब इंजेक्शन से जो हम खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं वो 30 मिनट्स के अंदर अगर हो जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। और डोर टू बलून टाइम मतलब हम डोर टू बलून टाइम का मतलब ये होता है कि हमको एंजियोप्लास्टी से उस ब्लॉकेज को ठीक करना है। जो आइडियल जो टाइम रहता है 90 मिनट तक रहता है। लेकिन कभी कुछ कुछ जगह में जैसे हमारे पास एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी नहीं होती है, उस समय हमको कैसे भी करके दवाइयों के द्वारा खून को पतला करना चाहिए। ये तो हो गया ट्रीटमेंट। फिर हम ये दे दिया, फिर बेटा ब्लॉकर दे दिया बीपी को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अब हमको प्रिवेंशन कैसे है, हम क्यों डायबिटिक है कि नहीं है। हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर आप मोटे हैं तो आपको अपना वजन कम करना है। वजन कम करना है, कैसे करना है, आपको सबसे पहले कैलोरी को इनटेक को कम करना है और एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना है। एक नॉर्मल पर्सन को, चाहे वो रिस्क फैक्टर में है या नहीं है, आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहना चाहिए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा या मेडिसिन के द्वारा आपके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। आपका जो ब्लड प्रेशर का जो 140 से 90 तक से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उनका जो टारगेट लेवल होता है 130 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 130 और 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें हैं तो आपको दवाइयों के द्वारा और के द्वारा ये सब नॉर्मल में रखना चाहिए। अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी ये सब एक्सरसाइज प्लस आप बादाम और अखरोट खा सकते हैं। और जो भी सैचुरेटेड फैट फूड्स हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपका फैटी चीज हो गया, तली हुई चीज हो गया, मीठा हो गया, इन सबको कट डाउन करना है। और आपको अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन पोल्ट्री, होल ग्रेन और फिश, ये सब करना है। अगर आप ये सब अपनी चीजों का ध्यान देंगे, अपने रिस्क फैक्टर को जानेंगे, उस रिस्क फैक्टर को संभावना ना के बराबर हो जाए।